الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين بأنوار معرفة برسول النبي الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. صدق بلغ رسول النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، حاضرین کرام، دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی جگہ پہ تمام خوش و خرم رہیں گے انشاءاللہ. ابھی اس نشست کے لیے قرآن پاک کی مشہور سورت قل اللہ کی پہلی آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس ٹاپک پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے آقا و مولا سیاح لامکا نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت بے کسبنا میں جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کر پڑھیے. صلی اللہ وسلم علی النور المبین. صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین. صلی اللہ وسلم علی النور المبین. صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین. صلی اللہ وسلم علی النور المبین. احمد مصطفیٰ سید المرسلین. الحمدللہ اور ایک بار آپ تمام کا دیدار کا شرف حاصل کیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تمام زندہ نوازی جو آج حاضر، اللہ تعالیٰ تمام کو حیاتی تندرستی عطا فرما. اور اس علم کی مجلس میں جو تمام ہم نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ، تو آج ہمارے صوفی ٹاک کی اور ایک کڑی آپ کے سامنے میں لے آ رہا ہوں. وہ ہے وحدانیت کی بات. یعنی قل هو اللہ احد، یعنی اللہ ایک ہے. اب صوفیاء کرام کے نزدیک احدیت کے لیے اور ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ایک الف بننا ہے. اور ایک الف بننے کے لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ 3 نقطے کی ضرورت ہے. العلم نقطۃ، علم ایک نقطہ ہے. تو 3 نقطہ اگر ہوگا تو ایک الف بنے گا. تو اسی کے زیر اثر اور اسی بات کو میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نگین عادل کے اندر کہتے ہیں، انسان کے برزخ کا کلمہ ہی نمونہ ہے. انسان کے برزخ کا کلمہ ہی نمونہ ہے. یہ بات سمجھنے کو بیعت تیری ہونا ہے. یہ بات سمجھنے کو بیعت تیری ہونا ہے. تم ذہن نشی کر لو یہ بات فقیروں کی. تم ذہن نشی کر لو یہ بات فقیروں کی. کھو جائے تو مٹی ہے ہاتھ آئے تو سونا ہے. کھو جائے تو مٹی ہے ہاتھ آئے تو سونا ہے. یہ کہہ کے خلافت کا خرقہ دیا مرشد نے. یہ کہہ کے خلافت کا خرقہ دیا مرشد نے. ہر شہر میں دنیا کے اس بیج کو بونا ہے. ہر شہر میں دنیا کے اس بیج کو بونا ہے. تعلیم سے کلمے کی نورانی بنا دینا. تعلیم سے کلمے کی نورانی بنا دینا ہے. ہر آدمی دنیا کا مٹی کا کھلونا ہے. ہر آدمی دنیا کا مٹی کا کھلونا ہے. اس ذات مقدس کی تخلیق ہوئی اس میں. اس ذات مقدس کی تخلیق ہوئی اس میں. وہ حضرت آدم کا کیا خواب سلونا ہے. وہ حضرت آدم کا کیا خواب سلونا ہے. مہتاب شاہ حضرت کی تربت سے صدا آئی.
महताब शाह हजरत की तुरबत से सदा आई, ये शहर खामोशा है सबको यहाँ सोना है। समझा दो है पीरा दिल तुम अपने मुरीदों को, समझा दो है पीरा दिल तुम अपने मुरीदों को, ये पीरी मुरीदी तो कांटों का बिछोना है, ये पीरी मुरीदी तो कांटों का बिछोना है, इंसान के बरसक का कलमा ही नमूना है। तो इसी में आज जो मैं आपके सामने उन्वान लाया हूं वो ये है कि अल्लाह एक है। कह दीजिए कि अल्लाह एक है, यानी उस जात मुकद्दस की तख्लीक हुई इसमें। अल्लाह ने रूह बनाकर भेजा, सब कुछ किया, लेकिन जिसने अपने अलिफ को जाना, क्या बोलते हैं हमारे उलिल्लाह, जिसने अपने अलिफ को जाना तो उसने अल्लाह को जाना, उसने इंसान को जाना, उसने आदम को जाना। अगर जिसने अलिफ को नहीं जाना, मैं सूफियाए किराम के लिए मैं बोल रहा हूं, मुरीद तो तमाम बनते हैं जो सूफी बनने के लिए, हमारा ये सब्जेक्ट ही है सूफी टॉक। ये सूफी टॉक ये कह रहा है, आपको समझा रहा है कि आपको यानी अलिफ बनना पड़ेगा, और अलिफ बनाने के लिए 3 नुक्ते की दरकार है। और हदीस यानी है क्या है कि अल इल्म नुक्ततुन, इल्म एक नुक्ता है। अगर ये नुक्ता जो जान लिया वो दानिश कहलाएगा, वो फाजिल कहलाएगा, वो आलिम कहलाएगा, वो पीर फकीर कहलाएगा। उसी बात की तकमील के लिए मेरे पीर कामिल अपनी बात इस तरह कहते हैं, उस जात मुकद्दस की तख्लीक हुई इसमें, उस जात मुकद्दस की तख्लीक हुई इसमें, वो हजरत आदम का क्या ख्वाब सिलोना है। उसी टॉपिक के बारे में मैं आपके सामने कुछ गुफ्तगू कर रहा हूं कि अब क्या है कि एक नुक्ता, 3 नुक्ता दरकार है एक अलिफ बनाने के लिए। तो एक नुक्ता क्या है, पहला जान लीजिए, वो है एक साइड अल्लाह, दूसरे साइड मोहम्मद रसूलुल्लाह। जैसा कि नोट दोनों साइड होगा तो चलन होगा। तो एक नूर का 2 टुकड़ा हुआ, एक टुकड़ा क्या कहलाया, अल्लाह वहदानियत, दूसरा कहलाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वहदानियत और रिसालत का वो नुक्ते पर अगर मोहर है, हमको एक अलिफ बनाना है, मेरा काम भी, मेरे औलिल्लाह ने हमको भी वही तालीम से नवाजा, मेरे आका सरकार जिंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इसी तालीम को हमसे नवाजा। तो मैंने पहले जो है इसे दोस्त नशिस्त में से पहले हमने ही कहा कि वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र, वसीयत करो हक की, तो उसी की कड़ी है। उसके बाद हमने कहा कि आपको जो है मुरीद बन जाना है। अब मुरीद बनने के बाद फिर आपको बंदे की, जो पिछले क्लास के हमने जो समझाया वो ये है कि आपको बंदा बनना है, और आज हम कह रहे हैं कि अलिफ बनना है। जब बंदा बनेंगे तो किसका बंदा बनेंगे, तो वो अलिफ जिसने बनता है तो उसमें आपको बंधना है, यानी वो नुक्ता समझना है। वो नुक्ता क्या है, एक उसमें 3 नुक्ता है। अब एक नुक्ते का पहला खुलासा, उसके दूसरे नुक्ते का खुलासा, उसके तीसरे नुक्ते का खुलासा करके इंशाअल्लाह आपको समझाने की कोशिश करेंगे, दुआ करते हैं। तो पहला नुक्ता अल्लाह, एक नुक्ता नंबर 1 जिसको बोला जाएगा, यानी फर्स्ट, पहला पहला नुक्ते का 2 परतू, 2 साइड, वो है एक वहदानियत, एक रिसालत। अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे, सूफी लोग, काम नहीं होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे तो काम नहीं होगा। नहीं, यहां क्या गड़बड़ कर जाते लोग कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ना पड़ेगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ना पड़ेगा, तो साथों साथ। और गौसे पाक की बात, हा हु ही हय्युन, वो भी हयात करना पड़ेगा। पहले नुक्ते की बात क्या है, एक अलिफ में 3 नुक्ते की दरकार। उसकी पहला नुक्ता अपने को समझना है, जिसको बोलते टॉप, उसके बाद मिडिल, उसके बाद लो, यानी पहला जो है आला रहेगा, उसमें दरमियानी होगा, उसके बाद नीचे रहेगा। तो इसके लिए पहला नुक्ता, उसके बाद वो नुक्ते के में, वो नुक्ते की 2 साइड
ایک साइड वहदानियत, एक साइड रसालत। तो आज क्या हो रहा है कि वहदानियत का जिक्र करेंगे तो काम नहीं होगा, रिसालत का जिक्र करेंगे तो काम नहीं होगा। पूरा पूरा आपको कलमा पढ़ना है। इसके लिए कुरान में जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह से नहीं आया। इसके लिए उस जात मुक़द्दस की तख्लीक हुई इसमें। तो ये पीराने उज़्ज़ाम का काम, ये सरवरे अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अलिफ को जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में, अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहहु में और अशरतुल मुबश्शरा तमाम सहाबा में जो सूफिया इकराम जो असहाब सुफ़ा में ये अलिफ बनाने का काम किया। जिसमें अलिफ जिंदा हुआ तो समझ लो वो ताजवर होता है। यानी पहले नबूवत मिलती थी, अब विलायत मिलती है। और जिसको न विलायत के लिए खिलाफत की जरूरत है, जिसके पास खिलाफत है तो समझ लो वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं अपना खलीफा बनाऊंगा, इसके लिए अल्लाह खिलाफत देना चाहता है। बात क्या है, अल्लाह इंसान ने हमारे दुश्मन के सामने, हमारे फरिश्तों के सामने हमें इंसान बोलकर हमारे मालिक ने नहीं बुलाया। अल्लाह ने क्या कहकर बुलाया कि मेरे खलीफा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह खिलाफत देना चाहता है, लेकिन हम नाकाबिल होने के बावजूद, हम नाकाबिल होने की बुनियाद पर हमें वो खिलाफत नहीं मिलती है। हम क्या है, आज तो बहुत खिलाफत दुनिया का चल रहा है, वो खिलाफत नहीं जो अल्लाह से जिसको खिलाफत मिलता है। कि अल्लाह कुरान पाक में सूरह बकरा में कह रहे हैं इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, हम अपना खिलाफत जो खलीफा बनाने वाले हैं, हम अपना खिलाफत देने वाले हैं। तो समझ लो जिस मुरीद को वो नवाजिश मिल जाती है, बस अपनी जिंदगी को अपने पीर पर कुर्बान कर कर वो दीन हक के लिए अगर काम करता है तो वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाता है। जिसकी मिसाल हमारे सामने सरकार जिंदा नवाज बनकर आए, अपने पीर कामिल सरकार पीर आदिल बिजाब रहमतुल्लाह अलैह के लिए आपने अपने तन मन धन से खिदमत करके सिलसिले पीर आदिल को बहुत आला ऊला मकाम पर पहुंचाया। उसका फायदा क्या मिला कि जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एवरी एक्शन है इक्वल रिएक्शन, हर अमल का रद्द अमल मसावी और मुखालिफ सिमत में होता है। उसका फायदा हुआ कि सरकार जिंदा नवाज जो है, आप जो है अमीर सिलसिला कहलाए। और हमेशा सरकार पीर आदिल बिजाब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि मैंने पूरी की पूरी मेरी तालीम जो कुरान से सही इरफान की तालीम वह सरकार जिंदा नवाज रहमानी पीर रहमतुल्लाह अलैह को अता किया। ये हमेशा बारहा कहते थे। तो ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि हमें ऐसे कामिल पीर से मुरीद है। तो उन्हीं का, तो इसके लिए समझ लेना है कि पहला नुक्ता, वो नुक्ता एक वहदानियत होगा, एक रिसालत होगा। तो हमको हर वक्त के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे तो काम नहीं होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु पढ़ेंगे तो काम नहीं होगा। और साथों साथ गौसे पाक की बात हम कादरी कर कादरियों में उठा हा हू ही के साथ पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर वो पहला नुक्ता करार पाएगा। वो नुक्ता जो अपने मकाम को पहुंचेगा। वहदानियत और रिसालत हमारे जिस्म में जो है जम हो जाएगा और अपनी कामयाबी की तरफ जाएगा। अगर वो जम ना होगा तो कुछ काम नहीं होने वाला है। मैं सूफी हूँ ये नहीं, मन घड़त बात सीखने से वो सूफी नहीं होता है। वो जैसा कि एक झाड़ बनाने के लिए उसका बीज डालना पड़ता है, उसी तरह यह वहदानियत का बीज और रिसालत का बीज और हा हू ही के साथ जो हा हू ही समझकर जो चलता है तो वो कामयाबी की तरफ चलता है। तो इसके लिए पहला नुक्ता वो नुक्ता ये है कि वहदानियत का एक साइड, दूसरे साइड रिसालत का। और उसको इस तरह कहा हमारी बड़ी खुशनसीबी है, जो तमाम जिंदा नवाजी की बड़ी खुशनसीबी है कि उनके जबान को भी कलमे से सही किया गया। उसके बाद दिल से भी उनको कलमा पढ़ाया गया, रूह से भी कलमा पढ़ाया गया है। जिसको नहीं मिला है वो सिलसिले जिंदा नवाजी से जो कांटेक्ट करे, वाबस्ता करे। क्योंकि हमारे खुलफाए किराम तमाम हिंदुस्तान के तमाम रियासत में मौजूद हैं, इसी तरह आलमी बैन अल-अक़वामी जगह पर भी हर जगह मौजूद है। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि ये सिलसिला बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सिलसिला है। इसके लिए इससे ज्यादा से ज्यादा राब्ता कायम करके अपने दिल के कलमे को भी
آپ اس سے بھی آشنا ہو جائے اور اس کے بعد روح کے کلمے سے بھی آشنا ہو جائے تو وہ یہ ہوگا کہ وہ پہلا نقطہ یعنی العلم نقطۃ، وہ علم یعنی وہ نقطہ قرار پائے گا. جب قرار پائے گا تو ربوبیت یعنی وہ زندہ ہوگا. جب تک قرار نہ پائے گا تو وہ ربوبیت کے مقام کو پہنچ نہیں سکتا. اس کے لیے ہمیشہ سرکار پیر عادل رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں کہتے ہیں، کلام میں کہتے ہیں، جس کا کلمہ صحیح ہوگا مومن وہی، ذکر کلمے سے سینے نکھر جائیں گے. جان پہچان رب کی نہیں ہے جنہیں، وہ تو دنیا ہی سے بے خبر جائیں. تو جس کا کلمہ صحیح، اس کے لیے پہلا نقطہ صحیح ہونا چاہیے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ بابا ہم نے مرید بنے، لیکن مرید بننے کے بعد بھی اپنا کلمہ پڑھنا الگ ہے. اب یہاں نقطہ قرار پانا ہے تو نقطہ قرار پانے کے لیے وہ زمین بھی پاک ہونا چاہیے جہاں وحدانیت کا جو بیج بویا جائے، جہاں رسالت کا بیج بویا جائے. جب وہ رسالت کا اور وحدانیت کا بیج مل کر ہا ہو ہی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو یقین کامل ہے وہ اپنے مقام کو پہنچتا ہے. تو آج میں وہی پوائنٹ کے اندر ڈسکس کرتا ہوں پہلا تو، اور اس کے آپ کو ایڈوانس سمجھاتا ہوں. جیسا کہ ایک ماں کے پیٹ میں ایک بچہ قرار پاتا ہے تو وہاں اولیاء اللہ بولتے ہیں اور ہمارے سرکار پیر اعظم رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں کہ ہو کا ذکر یعنی ہو کا رزق اس بچے کو جو اللہ دیتا ہے. اس کے بعد دنیا میں آتا ہے تو ماں کے سیدھے سائڈ کے چھاتی سے جو دودھ پیتا ہے وہ ہا کہلاتا ہے، اور ماں کے الٹے چھاتی سے دودھ پیتا ہے وہ ہی کہلاتا ہے. تو ہا ہو ہی جب قرار. اسی طرح جب آپ پیر سے مرید بن جاتے ہیں تو وحدانیت کی بھی بات آ جاتی ہے، رسالت کی بھی بات آ جاتی ہے. تو ساتھ و ساتھ ہو بولے تو شریعت کا علم بھی ہونا چاہیے، اس کے بعد طریقت کا علم بھی ہونا چاہیے، اور ہی بولے تو عمل بھی ہونا چاہیے. ہا ہو ہی حیم کا مطلب کیا ہوا؟ ہو جو ہے ہمارے لیے کیا کر رہا ہے؟ شریعت یعنی ہمارے نظام کو صحیح طریقے سے بنا رہا ہے، ہمارے نظام کو صحیح طریقے سے قرار دے رہا ہے، ہماری ربوبیت کر رہا ہے. 1 مہینہ ہوا، 2 مہینہ ہوا، 3 مہینہ ہوا، 4 مہینہ ہوا، 5 مہینہ ہوا، 6 مہینہ ہوا، 7 مہینہ ہوا، 8 مہینہ ہوا، 9 مہینہ، انہیں 1 سے 9. یہاں کے عدد میں بھی دیکھیے دنیا کے اندر 9 سے زیادہ کوئی عدد ہی نہیں ہے. 9 کے بعد پھر 0 آئے گا، پھر 0 ہو جائے گا. تو اللہ کا دیکھو کتنا بڑا حکمت. تو اسی طرح اپنے پیر کی جو خدمت کرتا ہے 9 سال یا 18 سال یا 27 سال یا 36 سال، جیسا جو ہے دکن کے شہنشاہ بندے نواز گیس و دراز بلند پرواہ حسینی گلبرگہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کامل حضرت نصر الدین چراغ رحمۃ اللہ علیہ کا 36 سال خدمت کی تو دکن کے شہنشاہ کہلائے. تو اسی طرح 36 کا مطلب یہ مکمل خدمت. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ آدھا خدمت سے بھی آدھا آدمی کیا ہوگا کہ نیم حکیم خطرے جان، نیم اللہ خطرے ایمان. تو ایسے نیم پیر بھی خطرے ایمان خطرے تصوف ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے نیم اللہ خطرے جان ہے، اس سے اگر ہم نے کوئی معائنہ کرائے تو وہ دوا کبھی الٹا کام ہو سکتا ہے. اسی طرح نیم اللہ سے اگر مسئلہ پوچھا جائے تو ہمارے وہ غلط بتلائے گا. اب اسی طرح نیم پیر سے بھی. تو اس کے لیے دنیا کے اندر آج تو نیم پیروں کا جو بازار گرم ہے، جو پورا مکمل اپنے الف کو مکمل کرنا ہے تو مکمل کرنے کے لیے وحدانیت میں آپ کو جانا پڑے گا. وہ وحدانیت کیا ہے؟ اللہ. یعنی آج لوگ بولتے ہیں کہ نہیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے، طریقت نہیں ہوگا، شریعت کی ضرورت ہے. شریعت کیا ہے بولے تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، ایمان ہے، اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. انہوں نے جس طرح چلے اس پہ چلنا پڑے گا. ابھی لوگ بولتے ہیں، بہت پیر صاحب بھی بولتے ہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے. ابھی نماز لانے والے کون ہیں؟ سرور انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے تحفہ دیا اس کو، اللہ کا تحفہ. اللہ نے تو نماز پڑھ کے ہم کو نہیں سکھائے، ہم کو سکھانے والے سیاح لامکاں
नाजिश हर दो जहां अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पीरी मुरीदी में इबलीस का खेला क्या होता है कि वो ये होता है कि भाई तुम अब पीर साहब बन गया है, अब तुम मुरीद बन गया है, अब तुझको नमाज की जरूरत नहीं है, तुझको रोजे की जरूरत नहीं है, तुझको हज की जरूरत नहीं है, तुझको ज़कात की जरूरत नहीं है, तुझको जो है यानी कुछ भी जरूरत नहीं है, किसका भी पैसा है तो ये खा ले, किसका सदका भी, किसका हक भी मार ले। ये क्या है, कितनी गलत बात है। पीरी मुरीदी सिखा रहा है कि हक क्या है, पीरी मुरीदी सिखा रहा है नमाज क्या है, पीरी मुरीदी सिखा रहा है रोजा क्या है, पीरी मुरीदी सिखा रहा है हज क्या है, पीरी मुरीदी क्या सिखा रहा है ज़कात क्या है। लेकिन क्या हो रहा है, इबलीस क्या कर रहा है, हमको जो है परेशान कर रहा है, हमारे ईमान को बातिल कर रहा है, हमको मुनाफिक बना रहा है। कि बाबा लोग हमेशा बोलते हैं कि सरकार जिंदा नवाज भी बोलते थे कि नमाज पढ़ो, अब नूरानी पीर साहब भी बोलते हैं नमाज पढ़ो। क्यों नमाज पढ़ो, इसीलिए नमाज पढ़ो क्योंकि अलिफ करार पाना है। तो अलिफ करार पाने के लिए उसके अंदर 3 नुक्ते की दरकार है, और एक नुक्ता जिसका करार पाएगा तो दूसरा नुक्ता भी करार पाएगा, उसका तीसरा नुक्ता भी। तो इसके लिए ये हमारे सूफिया इकराम की बात है, तो सरकार जिंदा नवाज की बात है, सरकार पीर आदिल बिजाक रहमतुल्लाह अलैह की बात है कि अल इल्म नुक्ततुन, वो इल्म नुक्ता, वो नुक्ता क्या है, पहला नुक्ता वहदानियत और रिसालत के साथ मिलकर यानी इसका जोड़ है। एक जोड़ में वहदानियत है, एक जोड़ में रिसालत है, दोनों जोड़ मिलकर एक कुदरत है। जिसके पास कुदरत है वो और हा हू ही के साथ, क्योंकि राह सफर में हमको कुछ खाना पीने की जरूरत है, हमें रिज्क की जरूरत है कि अगर रिज्क नहीं मिलेगा तो हमें काम नहीं होगा, तो वो रिज्क हासिल करने के लिए हमें हा हू ही। तो इसके लिए सही तरीके से जिस तरह सिलसिले जिंदा नवाजी में कलमा पढ़ाया जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुकम्मल कलमा होना चाहिए। जिसके पास मुकम्मल कलमा है वही कामिल कहलाएगा, यानी उसका करार पाएगा। पहला नुक्ता, उसके लिए अमल की जरूरत है, यानी अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, वरना यह खाकी फितरत नूरी है नारी है। तो लोग बोलते हैं इसके लिए इंसान के बरसक का कलमा ही नमूना है, इंसान के बरसक का। तो इंसान अभी इंसान बनाया है अल्लाह ने फना के लिए, लेकिन पीर ने उसको बनाया बका के लिए। इंसान इंसान ने बनाया, अल्लाह ने इंसान को बनाया फना के लिए, पीर ने बनाया बका के लिए। तो इसको बरसख बनाना पड़ेगा, इस पे नूरानियत रहमानियत, उस पे विलायत, उस पे खिलाफत का जो आपको रंग चढ़ाना पड़ेगा, इरफान का रंग चढ़ाना पड़ेगा। इसको हरे रंग से रंगाना पड़ेगा, इसको सफेद रंग से रंगाना पड़ेगा, इसको लाल रंग से रंगाना पड़ेगा, इसको पीले रंग से रंगाना पड़ेगा। तमाम रंग मिलने के बाद बेरंगा होना पड़ेगा। जो बेरंगा हो जाता है उसका नुक्ता करार पाएगा, और जिसका नुक्ता करार पाएगा वो साहिब मजार कहलाएगा, वो साहिब मजार कहलाएगा। तो इंशाअल्लाह अब इसका दूसरा नुक्ता इंशाअल्लाह अगले क्लास के अंदर आपको खुलासा करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करते हैं बुजुर्गान दीन के सदके तुफेल हमें ये नुक्ता समझने की तौफीक अता फरमा, और इसी पे चलने की तौफीक अता फरमा, और अपने बुजुर्गान दीन के मोहब्बत में सरशार होकर वो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहदानियत और रिसालत के बुनियाद पर अमल करना पड़ेगा। और जिसने अमल किया, और पढ़ना नहीं है, यहाँ करार पाना है। अब ये सूफी टॉक्स हम क्या समझा रहे हैं, अभी तो मुरीदों को कहा जाता है कि पढ़ने के लिए, अब जो है कहा जा रहा है करार पाने के लिए, यानी जिसको सूफी बनना है। जिसको सूफी नहीं बनना है तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे पास। तो हम उससे कुछ बात नहीं कर सकते। ये हमारा जो टाइटल है सूफी टॉक, तो सूफी टॉक ये समझा रहा है कि सूफी बनाना है। तो सूफी बनने के लिए वो उस ज़ात मुक़द्दस की तख्लीक हुई इसमें, उस ज़ात मुक़द्दस की। तो वो ज़ात मुक़द्दस को तो पहला जिसने तख्लीक किया, अगर मेरी बात होती तो गलत कहलाया जाता। तो सरकार पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब नगीर आदिल में 50 साल पहले कहे हैं कि उस ज़ात मुक़द्दस की तखलीक हुई इसमें, वो हजरत आदम का
क्या ख्वाब खिलौना, यानी तो वो हजरत आदम का वो ख्वाब कितना अच्छा है, तो वो ख्वाब को पूरा करना है कि आदम बनना है, यानी वली बनना है, और वली जिसने बना वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप समझे होंगे, इस पे अमल करने की मुझको भी और आपको भी तौफीक अता फरमा, और सूफी टॉक को सब्सक्राइब करने की, सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमा, और ये बात सबको समझाने की तौफीक अता फरमा। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको हामी और नासी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।